Institution of Engineers India Nagpur Center, in association with Nagpur Today, has organized a special panel discussion series called Nagpur Today Talks, Building a Sustainable Future. The first topic of the series is focused about the proposed expansion of Koradi thermal power plant. Without wasting much of our time, we'll be starting with today's topic. With the degrading air quality index in the city, it seems that Nagpur is slowly turning into a gas chamber. The Mahagenco has proposed 2 new units of coal-based supercritical thermal power plant in Koradi. Now the term I've used over here, supercritical coal plants, are said to be more efficient and less polluting than the traditional power plants as they emit fewer greenhouse gases. The new proposed plants are supposed to come up in place of 6 other power plants, including 2 at Parli in Beed, 2 in Chandrapur, 1 each at Koradi and Bhusawal in Jalgaon. But the main question today here is that, are these 2 plants actually needed in Koradi, and can development and environment go hand in hand? To brief us more about this, we are joined by our speakers today. First of all, I would like to thank Milind Pathak for letting us have a very good panel discussion over here. And I would invite him to speak on the issue for the same. First of all, as a chairman, Institution of Engineers Nagpur Local Center, I would like to welcome all the panelists and the spectators too. I welcome you for this good initiative which has been started, where a series is contemplated that for sustainable development what should be done, and this is the first panel discussion. I welcome you to this, welcome the August gathering to this panel discussion. As an engineer, development is the first thing we think of, and engineers are the growth engines of development. So we just cannot say no to a development. From Stone Age, the development is a continuous process and it's going on. So India has to rise above the tag that it is a developing nation, but it has to be a developed nation. For these projects of this scale or even bigger projects ought to come. And yes, for every project, the EIA is first done, environment impact assessment, wherein the cultural, then human health or socio-economic aspects are studied and right in the pre-planning stage, and the reports are submitted to the policy maker for deciding. These aspects, when studied and the decision taken by policy maker, they are in a larger interest, not of particular region, but for the country. So definitely the projects of this scale and bigger, even bigger than this should come. Now, what is the impact of that? That has to be addressed. Where you will be hearing both for and against the views, and the conclusion will be drawn out of it. But for me, the project should not be opposed. What should be done for mitigation of the effects on environment should be thought for, and those should be implemented so that the impact on environment is minimal. I had been to UK, and right in the Rugby, right in the middle of town, there was a big cement plant. I was surprised. I asked my relative there that whether this is working or not. No, this is working full-fledged. There was no sign that this is working. Otherwise, you see the cement plants here in Varora or the Chandrapur belt, kilometers before even the plant is visible, you can see the change in atmosphere. So if the mitigation is properly done, the impact on environment can be reduced and the project can be implemented. I am for development, so I am speaking for that, and I intend that the project should not be opposed just because of that. We should press that whatever are the impacts of environment should be addressed and its effect on environment should be reduced to zero. Then only we are ready. So give what are the technologies you are adopting for implementing of this project. That is because it's not only development gives a lot of things, it gives employment, it gives power. If we are talking for this project, the power is much needed and that should be given, because per capita, unless the per capita consumption of power increases, the nation cannot be tagged as developed. So in my opinion,
the project should not be opposed, but the impact on environment should be mitigated, and whatever technologies are required should be implemented for that. Lot can be said on both sides. We'll be hearing the views from both the types of views, both the panelists. I would like to quote 4 lines for them. नामुमकिन तो नहीं खिज्र में बहार का आना. खिज्र means sky. नामुमकिन तो नहीं खिज्र में बहार का आना, गर हौसलों की बारिश से दरख्तों को सींचा जाए. Thank you. First of all, I congratulate for entering into 75 years of independence of India. So I am begin with myself, Shekhar Amin. I am a technical advisor. I was technical advisor to Energy Minister for the last 5 years and served Mahagenco as an executive engineer in the most polluted atmosphere and in a lower post, and being all the time with the dust, ash, coal, all the time for 30 years, boiler maintenance. So environment is a big concern for all of us, and sustainable development for proposed expansion of Koradi Thermal Power Station is a topic of discussion today. So I was in Bajaj Auto when petrol was used. Now EV, electric vehicles are coming. So naturally, technology going towards environmental safety. Then I was in hydropower station at Totlado, Hattigota site. Then Mahagenco for 35 years in most polluted atmosphere with 24/7 duty. So I was a bureaucrat, then entered with Energy Minister, and I have vision, and I have learned lot of things from Mantralayas and all decision-making things for thermal power plants, hydropower plants, solar power plant, then wind power, etc., etc., etc. So the technology is upgraded since 1960. Paras Thermal Power Station is the first power station without pulverized coal. Then Khaparkheda, then front-fired 120 megawatt, then corner-fired 210 megawatt, 500 megawatt, 250 megawatt max DNA system, then 660 megawatt. Nowadays is a supercritical boiler are coming, and coal is the major polluter of world. So coal is the major ingredient used in 660 megawatt. So let me tell you what is supercritical. Supercritical is at a pressure of 225 kg per square centimeter. In a mechanical engineering language, the water directly converts into steam. There is no latent heat required, so there is fuel saving on supercritical boiler. Also, the complete combustion is also possible, so the flue gas leaving chimney has less pollutant. Secondly, the major problem with coal is Indian coal has got 34% of ash. That is very difficult for handling all over India. So first of all, we have created ash bund having large areas acquired. Then it was a disposal problem. Nowadays, it is a utilization problem. Ash is a disposal problem first. Then, धीरे धीरे मराठी में भी चलेगा, हिंदी में चलेगा. धीरे धीरे we have shifted to ash utilization. The cement plant में जो सीमेंट बनता है, उसमें ash डालने का Ministry of Environment से clearance आने के बाद we are thinking for ash utilization in cement plants. So now the plants located near Mumbai, Pune, that's Parli Baijnath, then Nashik Thermal Power Station, then Bhusawal Thermal Power Station, then Paras Thermal Power Station, 100% ash is going to cement plant. No ash is dumped in the ash bund. So there is very less pollution because ash is directly lifted to the cement plant. So ash is the biggest polluter. So, oh, only 1 minute. Oh.
ओके ओके. सो लास्ट, मैं थोड़ा सा टेक्निकल कम जाता हूँ. लास्ट जन सुनावनी में मैं भी था. 660 मेगावाट के फॉर में बोलने वाले भी लोग थे और अपोज में भी बोलने वाले लोग थे, तो मैं पूरा सुना वहाँ पे. लेकिन जो 13 ग्राम पंचायत है आजू बाजू की, दे आर फॉर रोजगार निर्मिती. रोजगार निर्मिती हा त्यांचा मेजर विषय होता, कारण त्यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न होता. ज्याचे पोटं भरले असतात जनरलमध्ये, त्याला पोटापाण्याचा प्रश्न नसला की एन्व्हायरमेंट हा एक त्यांच्यासाठी मेजर इश्यू होऊन जातो. पण ज्यांची पोटच भरले नाही, जसं माझी शेती गेली कोराडी पॉवर स्टेशनमध्ये, मला नोकरी लागली. मला नोकरी लागल्यावर मी रिटायर झालो. मी रिटायर झाल्यावर पोरांनी काय करावं आता? पोरगा आता 30 वर्ष झाला ना, मग त्याला नोकरीच नाही आहे. मग एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट म्हणजे प्रॉब्लेम इन रुरल इंडिया. So they don't never think or thought of environment in their mind. Because myself, I have worked 35 years in the most polluted area. So there are so many people, no diseases. And one thing I tell you that Mahajanko has got the policy of checking health problem every year for the contractor labor as well as the regular MSCB employees. So is there any data you have with Mahajanko that so many people suffered by pollution, so many suffered by no pollution? Is there any data? World Health Organization has got no data. PSC center in and around located near Koradi Thermal Power Station has no data. Who has suffered or who has diseases for pollution? पोल्युशनमुळे झालेल्या डिसिजांची संख्या किती आहे याचं काही नाहीच आहे ना, डाटाच नाही आहे. हाऊ यू प्लीड? Only thing I really appreciate that the sustainable development means the global temperature is increasing 1.5 degree and we are seeing all over world. This is not because only of thermal power stations. There are a number of pollutant industry, that is steel industry. We have actually converted bricks industry into ash industry, ash-based industry. There we are using less coal and less pollution. So every aspect of the life, FGDS is one of the things that I want to tell. There are a number of air and ambient air quality monitoring system in and around Koradi in all power station of Maharashtra. So I am for 660 megawatt proposed thermal power station at Koradi. Thank you very much. Good evening, everybody. This is a very, very important topic for today's discussions. I have worked as MSCDCL director for 5 years, and in this power sector I am working since last 40 years. First of all, we have to see that whether there is a requirement of additional power plant. I will start from that. Whether there is a requirement of additional power plant. MSPGCL, I am talking about only MSPGCL plants. MSPGCL plants in total in Maharashtra, about 10,000 megawatt generation is already there. Out of that, Vidarbha MSPGCL plants having about 7,000 megawatt. Apart from the private power plants, I am not counting those plants. Now, requirement of power in Vidarbha is not more than 2,500 megawatt. Rest of total power is going to Western Maharashtra, whether there is a requirement of power. Now, I will tell you example of Mumbai. I've taken figures today from SLDC. Mumbai is shortfall of 2,100 megawatt. Total requirement is about 3,600 megawatt. Only Tata Power is generating power there, about 1,400 megawatt. Why MSPGCL not generating at load centers? It will reduce the losses also, because the losses in the grid, that is about, even EHV losses are more than 6%. So these losses we have to pay from our pocket. Apart from that, for transmission lines, all farmers' lands, they are utilized in spite of a strong opposition from the farmers. So if
the requirement of power plant, if it is at all there, there are two formulas. One is install at pit head or install at load centers. Why in Vidarbha, where there is already a much generation is there, and it is not required at all. Now, as far as efficiency is concerned, the standard efficiency which should be for the power plant, that is called plant load factor, it should be about 85%. But these existing generating plants are working average, I will tell you, about 45% to 50% only. Instead of increasing the efficiency, they are increasing the number of plants. Why? I will tell you about coal quality. Coal quality, I recently have filed objection against the MSPGCL tariff. Coal quality which WCL supplies, I have talked to them also. The GCV of that coal is about 4,100 kilocalories. But the coal received at the power plant, it is of 3,100 to 3,200 only. Why? There is coal mafia. I am straightly saying that it is a coal mafia and there is theft of coal. Washed coal, again they are supplying washed coal, and washed coal they are taking about 20% rejects, and that 20% rejects they are purchasing from MSCGCL at rupees 400, 300 to 400, and they are selling in the market at more than 3,000 rupees. This is going on since long, which I have pointed out every time, but nobody is listening to it. Instead of increasing the efficiency of the plant, why you want to install more and more additional plants? Not required at all. I have got detailed figures. Yeah. No, if you want to ask some question, because this is very important topic. 1 minute, how I can cover in 1 minute? I do not know. How it is possible to cover this important topic in 1 minute? Recently, MERC has passed an order in which they have pointed about the plant load factor, which they have approved for 85%, but 85% was not possible, so they have approved average nearly 65% PLF should be there. Even then, MSPGCL achieved only 45%, 45 to 50%. Because of quality of coal, again ash generation is there. This ash is generated because of poor quality of coal, and totally ash is dumped there. And he was talking about ash dump in the, so that ash burned has broken, you might be knowing. And all the drinking water is polluted. We are drinking water having high mercury and high this radioactive material. You may not be knowing, you get it tested. Even testing is not possible. So these things are going to happen. But in my opinion, since she is saying to stop me, otherwise this is a very big topic. So it is very important that efficiency of the plant should be increased instead of new plant. If at all it is required, why not in Mumbai? Why in Vidarbha? Load is required in Mumbai, and we are paying from our pocket about the, and you may be knowing that the power cost in Maharashtra is highest in India, only because of these inefficient persons working there, only because of this corruption. This I am raising since very long, and even I have raised with MERC also. They have taken some cognizance. If you read the order, whatever I have said, it will be available there. So there is not much time to speak on this. So thank you very much. Thanks. Next, can we have Leena Buddhe, please? So I would say that power is okay, but polluted power is not okay. Polluted power is not okay. Actually, we had done a study in the Kuradi and Khaparkheda area. And like sir has said that no study is available. This is wrong. Actually, a study is available. We released this report called Polluted Power. This report was released on November 2021. And in this report, it is clearly mentioned
how the power plants, existing power plants, are not doing any compliance. There is absolutely no compliance. So there are n number of complaints that have gone, and MPCB has issued n number of notices to these two power plants that are there, the Koradi and the Khaparkheda thermal power plant, and we have seen that they are releasing huge amount of fly ash into the river. Sir kept on saying that I have lived in the most polluted area and still nothing has happened. But he agrees that the area is polluted. So there is a cocktail of pollution over there. So right from the time that coal is coming out, the pollution starts. The transportation of coal, the washing of coal, when the coal reaches the thermal power plant, when the coal is burned to produce energy, huge amount of fly ash is going, and this ash is creating havoc in the lives of people over there. The 13 gram panchayats, they are only talking about employment and nobody is talking about environment. If the environment is not good, how are we going to eat? Are we going to eat fly ash? Are we going to eat coal? We can't eat fly ash and coal. All this fly ash has totally destroyed the farmlands. Today, in today's date, no farmer is able to produce good yield. 40 to 50% of the yield has gone down. The chakri tomato that used to be there is no longer there. You talk to the farmers, they will tell you that they cannot do farming activity anymore. Because of this, they have converted their farmlands into brick kilns. Like it has been said that the coal power plant, when it comes up and when it acquires huge fertile land for the purpose of dumping ash, this ash is dumped in 2 ash bunds, and these 2 ash bunds are on, one ash bund is on 314 acres of land. A whole village was relocated to some other place to have this ash bund. And the second ash bund is located on 253 acres of land. So can you imagine the ash that is there? And the ash bund that has been made is unscientifically made. There is no lining in these ash bunds, and the existing power plants are creating big havoc in the lives of people. So it is polluting the land, it is polluting the water, and it is polluting the air. Air and water cannot be local, it cannot be sthanic. The water that is being polluted, the huge amount of fly ash that is released into the rivers, the Kanhan and the Kolar river. The Kanhan river is the main source of water supply to even Nagpur. And during monsoon season, so much of ash is actually released into the plant. I don't understand why Mahagenco is creating this natak of making ash bunds. And when you talk to the officers over there, they say कि कुछ नहीं होता मैडम, ऊपर का सुपरलेटेंट लिक्विड जाता है पानी में. अरे पर वो ऐश में है क्या? आपने ये रिपोर्ट आप पढ़िए, ये रिपोर्ट में पूरी एनालिसिस दी हुई है कि वो पानी में क्या क्या है. वो पानी में सारे हैवी मेटल्स है, और ये सिर्फ हैवी मेटल्स जो है वो वहाँ के जितने भी विलेजेस है, पूरे विलेजेस के पानी दूषित हो गए हैं. द फैक्ट दैट महाजेंको हैज पुट अप ATM water ATMs in all these villages proves that the water is polluted. Today, the villagers are forced to drink, buy water. 5 रुपए देके 20 लीटर पानी खरीदते हैं वो water ATM से. I need to ask these Mahagenco guys कि ये पानी अगर प्रदूषित ही नहीं है तो इन लोगों ने वाटर ATMs क्यों डाल के दिया है लोगों को? ये सारे जो प्रश्न हैं ये हमको पूछने पड़ेंगे. और ये जो नए पावर प्लांट की बात कर रही है, क्या गारंटी है? पहले के पावर प्लांट्स भी सुपर क्रिटिकल ही थे और ये पावर प्लांट भी सुपर क्रिटिकल के नाम पे आ रहा है. The ash bund that is going to, the ash where they are going to discharge, वो abandoned कोराडी ash bund में डालने वाले, that is also not scientifically done. पूरा ऐश से भरा हुआ है एंड पूरा ऐश जो है वो कह रहे हैं कि उसमें वो डिस्चार्ज करेंगे, फिर से उसमें डिस्चार्ज करेंगे, तो वो ऐश बर्न भी विदाउट एनी HDPE लाइनिंग बनी हुई है और ये वाटर एक्विफायर्स को पूरा खराब कर दे रही है. तो मेरा कहना है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो ये पावर प्लांट की यहाँ पे इसको लाने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरा, एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स ही अगर कंप्लायंस नहीं करते तो आप सोच लीजिए कि ये डबल लोड यहाँ पे डाल के ये विदर्भ के लोगों के साथ में क्या न्याय करेंगे. सो पावर इज़ ओके बट पॉल्यूटेड पावर इज़ नॉट ओके.
Thank you. Next, can we have Prakash Yadav ji, please? आपने हमें निमंत्रण दिया कि आप जो जन सुनावनी हुई थी कोराडी में 360 के 2 यूनिट लाने के हैं 660 के, और ऑलरेडी अपने यहाँ विदर्भ में 16,000 मेगावाट के ऊपर हम लोग बना रहे हैं। उसमें नया पावर प्रोजेक्ट पुराने पावर प्रोजेक्ट के बाजू में ही लाना चाहते हैं। उसकी जन सुनावनी में हमारी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई थी। मैं हिंदी मराठी में बोलूँगा क्योंकि मेरे साथ जो लोग आए हैं वो बेचारे सब मराठी और गांव खेड़े के लोग हैं। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की तकलीफ उनको है। मैं यहाँ स्पष्टपणे बता देना चाहता हूँ कि हम सब लोग कोयले से बिजली बनाने के पावर प्रोजेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जितना कोयला जलेगा उतनी राख निकलेगी। पूरे विदर्भ के बारे में अगर सोचा जाए तो पावर प्रोजेक्ट को कोयला बेस पावर प्रोजेक्ट होने के कारण हमारे सारे एरिया में WCLs की कोल माइंस बहुत बड़े प्रमाण में है। MPCB वाले, इन्वायरमेंट वाले, जब ये सब समितियाँ इनको NOC देती हैं तो काफ़ी शर्ती उनको डाली जाती है, उनको नियमावली डाली जाती है कि कितने अंतर पे पावर प्रोजेक्ट होना, नदी और पावर प्रोजेक्ट का अंतर कितना होना चाहिए, हाईवे का अंतर कितना होना चाहिए, चिमनी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। ये सब बातों को अलग अलग डिपार्टमेंट NOC दे देती है। मैं भी कनान नदी बचाओ आंदोलन चला रहा हूँ पिछले 6-7 साल से। हम लोगों ने इस रिवर को देखा कि पीने के पानी की गुणवत्ता की कनान नदी, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1986 को करीब करीब 20 रिवर को स्टेटस दिया था कि जिस रिवर का पानी पीने के गुणवत्ता का है। इस विदर्भ में वैनगंगा, वर्धा, कृष्णा ऐसी कुछ रिवर्स है जिनको स्टेटस मिला है, लेकिन नागपुर में अकेली एक नदी है कनान नदी जिसको 20 रिवर्स का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। यही पेच है और यही कोलार है। हुआ ऐसा है कि अपने यहाँ पावर प्रोजेक्ट जब बने कोराडी, खापरखेड़ा, ये सब लोगों ने 3 ऐशबंड बनाए, राख प्रकल्प बनाए, और ये सारे राख प्रकल्प की क्षमता बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। इसलिए इन्होंने उस समय भी लिख के दिया है, इन्वायरमेंट क्लियरेंस में भी ये अट डाली हुई है कि राख आप कितने वर्षों में 0 डिस्चार्ज करोगे, उस पर कोई बोलता नहीं है। वो भी मर्यादा खत्म हो चुकी है, लेकिन राख उठाने वाले, राख ले जाने वाले इनको मिल नहीं रहे, और इसलिए बड़े प्रमाण में सारे राख प्रकल्प जो है वो खुद का अस्तित्व खो बैठे हैं। अब नई बात जब आती है तो बोलते हैं कि उसकी वॉल बढ़ा देंगे, उसकी दीवार बड़ी बना देंगे। जब उसकी दीवार बड़ी बनाएंगे तो आपको मालूम है कि जब भी बड़े प्रमाण में बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये बांध तीनों में से कोई ना कोई फूटते रहता है, टूटते रहता है। ये फूटता है और ये कोलार नदी में जाता है, और सारी कोलार नदी कनान नदी को पूरा डस्ट लेके जाती है और राखमय कर देती है पूरे रिवर को। ऐसे सिचुएशन में कि नागपुर में एक नदी जिले में है जिससे पूरा जिला पानी पीता है, गांव खेड़े पानी पीते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि इन लोगों ने पिछले बार जब जन सुनावनी ली थी तो 10, 12 और 13 किलोमीटर के नागरिकों को, गांव के लोगों को बुलाया था। 275 मीटर के चिमनी हाइट में से जो धुआं निकलेगा कोयले का, वो कितने किलोमीटर तक जाएगा? ये पानी रिवर का कौन से रिवर का पानी ये पोल्यूटेड करने वाले हैं? फिर बुलाने किन लोगों को बुलाते हैं आप लोग? 10 किलोमीटर के गांवों को। मेरे को लगता है 23 या 24 गांव होंगे, उसमें से भी 10-12 गांव के सरपंचों को बुलाया गया था। अच्छा, मेरा फ्लो जो है मैं मराठी में बोलता हूँ की या ठिकाणी सर्वप्रथम मला सांगायचं आहे की आपण जो पॉवर प्रोजेक्ट या ठिकाणी आणतोय म्हणून चाललाय, मोठा भाऊ चालला आहे, वर्तमानपत्रांमध्ये, टीव्ही मधून सगळं चाललंय, जनसुनावणी झाली, विरोधाभास निर्माण झाला। खऱ्या अर्थानं विरोधाभास जेव्हा निर्माण झाला तेव्हा चर्चा झाली, आणि चर्चा कुठे झाली तर एवढ्या मोठ्या सराउंडिंग मध्ये जिथे सगळं प्रदूषण होणार आहे त्या सगळ्या भागांमध्ये तर जनसुनावणी झालीच नाही। जनसुनावणी पोलिसाच्या बंदुकीच्या बंदोबस्तामध्ये झाली। कुठे झाली आहे तर पॉवर प्रोजेक्टच्या त्या सगळ्या कंपाऊंडच्या आतमध्ये जनसुनावणी झाली आहे। लोकांना धक्काबुक्की झाली आहे,
गरीब लोक, गावातले लोक, शेतकरी, शेतमजूर, जो ते प्रदूषण भोगणार आहे तो बंदूकवाल्या पोलीसवाल्याच्या समोर बोलू शकतो? आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने एक मोठा दबाव बनवला गेला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये तिथे जनसुनावणी झाली. पर्यावरण विषयक जनसुनावणीमध्ये विषय काय होते तर बहुत बड़े प्रमाण में नौकरी मिलने वाली, नोकरीचे विषय होते. पर्यावरणाचे कायदे लोकांना माहीत आहे. पर्यावरणाच्या बाबतीत आपण जनजागृती केली. जिथे जिथे पोल्युशन होणार आहे, ज्या ज्या गावांना तुम्ही एनओसी मागताय, ज्या ज्या गावांमध्ये तुम्ही पत्रकं लावलेले आहेत, तुमचा जो प्रोजेक्ट लावला आहे ग्रामपंचायतीमध्ये, तो प्रोजेक्ट सुद्धा जो लिहिलेला आहे तो इंग्रजीमध्ये लिहिला आहे. त्या गरीब गावाच्या लोकांना इंग्रजी पण किती 2-3% लोकांना वाचता आला असेल. आणि एका कॉर्नरमध्ये मराठीचा मसुदा होता, संदर्भ. अशी जनसुनावणीचा कुठं पत्रव्यवहार पाहिलाय तुम्ही? अरे ज्याला जी भाषा समजते त्या भाषेमध्ये तुम्ही जनसुनावणी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. याच्यावर कोण बोलणार आहे? आणि म्हणून आम्ही बघतोय ही MPCB जनसुनावणी घेते, ज्या MPCB कडे जवळपास माझ्या आतापर्यंतच्या आयुष्यामधले 200 पत्र असतील, जवळपास 50 पत्र तर मी या 2-3 वर्षामध्ये दिलेले आहेत. अरे आमची नदी पोल्युटेड झाली आहे, आमच्या नदीमध्ये तुमची राख येते, कोल डस्ट येतोय. तुम्हाला मोजायचंच असेल प्रदूषण आकाशामध्ये कसं होते आहे तर ते क्रो फ्लाय डिस्टन्स वगैरे वगैरे ते सगळे नौटंकी लोकांना बनवून पेपरमध्ये जाहीर करता तुम्ही. हे बंद करा नाटक. येऊन बघा जरा कोळशाच्या खाणी कुठे आहेत. तो कोळसा कोणासाठी काढला जातोय? याच पॉवर प्रोजेक्टसाठी काढला जातोय ना. मग या पॉवर प्रोजेक्टची चिमणी 275 मीटरवरून स्प्रेड करेल सगळा धुवा. आणि कोल माईन्सचे जे टेकडं आणि पहाडं जे निर्माण होऊन राहिले मातीत टाकून, त्या गावाच्या आजूबाजूला, मी कनानला राहतोय, माझ्या गावाला या जरा कधीतरी जबाबदार नागरिक म्हणून आणि एक रात्र थांबून बघा. तुम्हाला रात्रभर असा आकाशामध्ये सगळीकडे त्या मातीचे कण उडताना दिसत आहेत. मातीमय वातावरण झालंय. अरे या जिल्ह्यामध्ये कॅन्सरचं प्रमाण किती वाढलं याचा तरी कधी अभ्यास होणार आहे की नाही? की फक्त पॉवर प्रोजेक्ट आणा, माझा विरोध त्याच्यासाठी नाही, पण तुम्ही रोजगाराच्या नावाने जे लोकांना मूर्ख बनवतायत, रोजगाराच्या नावाने जर तुम्ही आज गंभीर असाल तर या जिल्ह्यातले साखर कारखाने का बंद झाले तेव्हा हे सगळे लोक कुठं बसले होते? या जिल्ह्यातले अनेक MIDCचे उद्योग बंद झाले, तिकडे रोजगार होता ना. अनेक ठिकाणचे पॉवर प्रोजेक्ट बंद झाले. या विदर्भातले कॅप्टिव्ह पॉवर प्रोजेक्ट बंद झाले. अनेक माइन्स जे प्रायव्हेट कॅप्टिव्ह पॉवर प्रोजेक्टला दिल्या होत्या त्या सरकारने परत घेऊन टाकल्या. या सगळ्या लोकांचा रोजगार गेला नाही. आणि मग रोजगार किती लोकांना देणार आहे? 200, 300, 400, 500 लोकांना रोजगार देणार आहेत. आणि आजूबाजूच्या सगळ्या जवळपास हजारो लोकसंख्येच्या वसाहतीमध्ये, लाखोच्या वसाहतीमध्ये नागपूरला किती लोक राहत आहेत? कामठीला किती लोक राहत आहेत? माझं गाव ग्रामपंचायत होती ती आता नगरपालिका झाली. किती आबादी आहे? आमच्या बाजूला WCLच्या 4 ते 5 माइन्स आहेत. सगळ्यांचे पहाड उभे झालेत. आणि तो सगळा रात्रभर जो मातीचा उपसा करतायत त्याचे ते पार्टिकल्स असतात ते हवेमध्ये उडत राहत आहेत. इकडे हा तुमचा धुवा जो आहे पॉवर प्रोजेक्टचा, खापरखेड्याला पॉवर प्रोजेक्ट तुम्ही आणलाय 500 मेगावॉटचा एक युनिट नवीनवाला. त्याचं नाव दिलं विस्तार केला आम्ही. कशाचा विस्तार केलाय? पॉवर प्रोजेक्टचं लोन सेपरेट, पॉवर प्रोजेक्टचं एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स वेगळं, पॉवर प्रोजेक्टचं कोल लिंकेज वेगळं, पॉवर प्रोजेक्टची जागा वेगळी. काय विस्तार म्हणजे काय? एका मशीनला दुसरी मशीन जोडली तुम्ही, लहान मशीनची मोठी मशीन जोडली तुम्ही. विस्ताराच्या नावानं सगळ्या विदर्भाच्या लोकांना मूर्ख बनवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे असं मला प्रामुख्याने या ठिकाणी म्हणावंसं वाटतं. की तुम्ही बघा, विस्तार केला, 287 मीटरची ते तुमची चिमणी उभी केली त्यांनी. आणि बघा रात्री कसे सगळे, जेव्हा लाईट बीट सगळे आपले खालचे बंद होतात तेव्हा वरचा उजेड बघा, सगळा राखेचा उजेड असतो, राखेचा. आकाशातून चमकणाऱ्या सगळ्या व्यवस्था ते धूर दाखवत आहेत तुम्हाला. जरा कधीतरी जबाबदार नागरिक म्हणून बघा. आणि म्हणून मग माझं त्याही वेळेला एक ऑब्जेक्शन होतं. आम्ही MPCBला सांगतो, अरे हे कोल पार्टिकल्स सगळे येत आहेत, हे राखेचे पार्टिकल्स ह्याचे येत आहेत, हे विषारी पार्टिकल्स आहेत, हे लोक पिण्याच्या पाण्यातून पितील, लोकांच्या श्वासातून ते सगळे शरीरामध्ये जातील, लोकांना कॅन्सर होईल, लोकांना भयावह रोग होतील, लोक तडफडून मरतील. कधीतरी कॅन्सर हॉस्पिटलला व्हिजिट करा, म्हणजे तुमच्या जनसुनावणीचा सगळा सार तुम्हाला डोळ्याने दिसेल. मित्रांनो, लहान लहान मुलं कॅन्सर बिमार झालेले आहेत, वयोवृद्ध झालेले आहेत, ते लहान मुलं तंबाखू खात आहेत, ते लहान मुलं काहीतरी ड्रिंक वगैरे करतायत. कशाने कॅन्सर झाला त्यांना? त्याचेही कारण जाहीर झाले पाहिजेत. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं कोल लिंकेजच्या नावाने जेव्हा विषय निघतो तेव्हा साधा विषय. तुम्ही या विदर्भातले किती पॉवर प्रोजेक्ट बंद केले? 210चे 1500 मेगावॉट पॉवर प्रोजेक्ट तुम्ही बंद केलेला आहे टोटल. सगळं जर पकडला तर मग ते पारस आहे, नाशिक आहे, वगैरे वगैरे. 210चा आपण इथे कोराडीत पण बंद केलेला आहे. मग इथे कामगार होते ते कुठे गेले? इथे जो कोल लिंकेज होता तो कोल लिंकेजचं तुम्ही काय केलं?
ह्या सगळ्या ठिकाणी तेच ते कारखाने जर 210चे 5-6 सुरू केले असते तर तुमचा प्रश्न नव्हताच इथे काही. ऑलरेडी तिकडे जागा आहे, ऑलरेडी तुमच्या तिकडे उद्योगाचे सगळे सुरक्षाचे त्या इमारतीचे सगळे जे आपण कंपाऊंड वॉल म्हणतो त्याला ते कंपाऊंड वॉल्स आहेत, सिक्युरिटी आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. पण तुम्ही नियम फक्त कुठे लावायचा? कोराडीला. कोणाला प्रिय असा पॉवर प्रोजेक्ट आहे? आम्हाला तुम्ही रोजगार देणार आणि नोकरी देण्याच्या आमिषानं आम्हाला तुम्ही वेडे बनवणार? खऱ्या अर्थानं जेव्हा नोकरी महाराष्ट्र शासनाची, मित्रांनो, कुठेही नोकरी निघू द्यात, वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात निघाल्याशिवाय तुम्ही कोणालाही नोकरी देऊ शकत नाही. मग तिथे तुम्ही मनाई कराल की नांदेडच्या माणसांनी अर्ज करायचा नाही, पुण्याच्या माणसांनी अर्ज करायचा नाही, या विदर्भातल्या चारही बाजूच्या लोकांनी, शिकलेल्या पोरांनी अर्ज करायचा नाही. शिक्षणाच्या पात्रता तुम्ही ज्या मागाल ते पात्र असलेले उमेदवार हे कुठूनही येतील, तुम्ही त्याला इंटरव्ह्यूला नाकारू शकत नाही. आणि म्हणून मग 200, 300, 400, मला वाटते 540 फक्त रोजगार यांनी लिहिलेला आहे. 534 मध्ये कुशल किती, अकुशल किती, टेक्निकल किती, तुम्हाला बॉयलरसाठी किती लोक पाहिजे, कोल हँडलिंगसाठी किती पाहिजे, केमिकल्स तपासणारे तुम्हाला लॅबॉरेटरीचे लोक किती पाहिजेत, ह्या सगळ्या गोष्टी जाहीर झाल्या पाहिजेत ना. आणि म्हणून या पॉवर प्रोजेक्टला पूर्ण ताकदीने विरोध केला, पूर्ण ताकदीने आम्ही विरोध करणार. कारण आम्ही नदी, प्रदूषित झालेल्या नदीचे नागरिक आहोत. मी तर किनाऱ्यावर राहतो मित्रांनो, किनाऱ्यावर. तुम्ही नागपूरचे रहिवासी, तुमचं सौभाग्य चांगलं आहे की तुमचं सगळं 750 MLT, पिली नदी, पोहरा नदी, ही नाग नदीची घाण, तुम्ही रोजची जी घाण निघते ते 750 MLT निघतं. तुम्ही 400 वर प्रोसेस केली आहे आणि 400 MLT वर प्रोसेस करून तुमचं कोराडी आणि थर्मल पॉवर खापरखेडा प्रोजेक्ट घेऊन गेलेली आहेत. आणि 350 MLT पाणी तुम्ही चाफेगडी नावाचं, मी त्याही दिवशी जनसुनावणी सांगितलं होतं की चाफेगडी नावाच्या गावाच्या बाजूला कोही तालुक्यामध्ये नाग नदीने कनान नदीमध्ये जाऊन संगम केला आणि ही सगळी नागपूरच्या मलमूत्राची, मेलेले डुकरं, मेलेले कुत्रे, मेलेले जनावरं आणि घाण, सगळी नागरी घाण जी आहे ती गटारगंगा तुम्ही नेऊन कनान नदी सोडली. मित्रांनो, ज्या नदीचं पाणी आम्ही पितो, विदाऊट ट्रीटेड पाणी आम्ही पितो. तुम्ही काय करता? तुम्ही एवढं पाणी सगळं तुम्ही सोडताय त्या घाण, आणि तुम्ही जुन्या कामठीला वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट लावून पूर्ण शहर ट्रीटेड पाणी पितं. केमिकलचं पाणी. ट्रीटेड म्हणजे काय? तुम्हाला ट्रीट करायचं असेल तर रसायनं वापरावे लागतील. तुम्ही रसायनयुक्त पाणी पिताय, म्हणजे शुद्ध पाणी पिणं नव्हे. आपला जलसाठा अशुद्ध करायचा, आपला जलसाठा प्रदूषित करायचा आणि उद्योगाच्या नावाने तुम्ही मूर्ख बनवायचं आणि मग ते पोल्युटेड पाणी आम्ही प्यायचं आणि कमाई तुम्ही करायची. हे कुठले नियम आहेत? अरे, जलशुद्धीकरण यंत्रणा लावण्यापेक्षा आमच्या नदीत घाण टाकणं बंद करून द्या. तुमचा आमचा काही वाद नाही. तुम्ही आपल्या पाण्यावर ट्रीट करा, तुम्ही आपल्या पाण्याचे वेगळे धरणं बनवा, तुम्ही आपल्या पाण्यासाठी काय काय करायचं ते सगळं करा. घाण पाणी झालं त्याच्यावर ट्रीट करा आणि मग नदीत सोडा. नदी घाण होणार नाही आणि प्रोजेक्टही चालेल. असे प्रकल्प होऊ शकतात. पण पॉवर प्रोजेक्टच का? MIDC मध्ये किती उद्योग बंद झालेत, हिंगण्यामध्ये, बुटीबोरीमध्ये. याच्यावर कोण बोलतोय? माझं एकच मागणी आहे, मी हा उद्योगाला विरोध करायचा म्हणून मी करत नाही. माझं हे सगळे मुद्दे आहेत माझे. आमच्या तरुणांची लाईफ काय आहे? तुम्ही आम्हाला आरोचे ते निळेवाले शेड लावून दिलेत आणि सगळ्या 8-10 गावांना देऊन फक्त त्याची फिल्म फोटोग्राफी झाली आणि मार उदो झाला की जे गावं पोल्युटेड झाली त्या सगळ्या पोल्युटेड गावांना आम्ही हे पाणी पिऊ देणार नाही, आम्ही RO लावून पाणी देतो आहे. त्या लोकांना जाऊन विचारा, 2-2, 3-3 वर्ष यांचे RO बंद असतात, कारण त्याचा वर्षाचा खर्च जो असतो त्याला मेंटेन करण्याचा तो 3 ते 4 लाखाचा असतो. त्या ग्रामपंचायतीची एवढी अवकात नाही आहे की ते 4 लाख रुपये पिण्याच्या पाण्यावर ट्रीटमेंटमध्ये टाकतील. आणि विषय साफसूत्र आहे. रोजगाराच्या नावानं मूर्ख बनवणं बंद झालं पाहिजे. तुम्ही खऱ्या अर्थानं जो पॉवर प्रोजेक्ट ऑलरेडी तिथं चालवतायत, आमची गरज किती आहे? अरे, तुम्ही इथे वीज बनवताय आणि तुम्ही तिकडे मराठवाड्याकडे वीज घेऊन जाता, पुण्यापर्यंत, मुंबईपर्यंत वीज घेऊन जाताय. तुमचं ट्रान्सपोर्टेशन लॉसेस किती आहे? हे हाय फ्रिक्वेन्सी लाईट्स तुम्ही जे ते टॉवर जे उभे करताय त्याच्या आजूबाजूला जरा साहेब येऊन बघा. आमच्या शेतकऱ्यांच्या तिकडे एक चिमणीचा छोटासा बच्चा दिसत नाही, कावडे दिसत नाहीत, बगडे दिसत नाहीत. पक्ष्यांचे थवे नष्ट झाल्यात या विदर्भामध्ये. कशामुळे नष्ट झालेत? आणि दादागिरी काय? तर ते टॉवर लाईन जे जातं, हाय टेन्शन लाईन, त्याच्या खाली तुम्ही शेती करायची नाही. हा कुठला कायदा आहे? तुम्ही त्याच्या खाली कोठा बनवायचा नाही, जनावरं बांधवायचे नाहीत, तुम्ही वावर करायचा नाही, वापर करायचा नाही. अरे, शेती माझी. तुम्ही सांगाल मला बिना पैसे देऊन की तुम्ही पेरला हे चुकीचं पेरलंय. दरवर्षी कुठलंही असं वर्ष नाही
की त्या हाय टेन्शन लाईनमुळे आमच्या शेतीला आग लागली नसेल. झालं टायमिंग मला सॉरी माहीत नव्हतं, पण मी एंड करतो 1 मिनिटामध्ये. आणि म्हणून माझा गंभीर विषय आहे मॅडम, 1 मिनिट इकडे तिकडे होता येईल. आणि म्हणून मला एक प्रामुख्याने या ठिकाणी सांगतो, मला टायमिंगचे बंधनं दिले नव्हते, परंतु हा जर पॉवर प्रोजेक्ट या ठिकाणी आणला तर ही दादागिरी होईल, आपल्या स्थानिक लोकांशी बैमानी होईल आणि कोणाचा तरी लाड करण्यासाठी किंवा कोणाचा तरी लाभ आणि नफा कमवण्याच्या दृष्टिकोनातून हा पॉवर प्रोजेक्ट या ठिकाणी येईल. पण याच्यासाठी आता एक मोठं युद्ध लढावं लागेल. आम्ही हो देणार नाही. आमचं एकच मत आहे की जिकडे तुमच्याकडे जागा खाली आहेत, जिकडे प्रदूषण कमी आहे किंवा ज्या लोकांना विजेची जास्त मागणी आहे त्यांच्या भागात तो प्रोजेक्ट घेऊन जा. आमचं काहीही मत नाही. आणि म्हणून WCLचा सगळ्या पोल्युशनला आळा घातला पाहिजे. त्या सगळ्या WCL कोणासाठी कोळसा काढतायत? याच पॉवर प्रोजेक्टसाठी. आमची नदी जी पोल्युटेड झाली, कधीतरी एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्या नदीच्या बाजूला येऊन फिरून बघा तर तुम्हाला कळेल की त्या नदीचं पाणी तुम्ही गुळला करण्यासाठी सुद्धा वापरणार नाही. इतकं हिरवंगार पाणी होऊन गेलं आहे. ही घाण पुरी झाली. आता आम्ही घाण पाणी पिणार नाही. तुम्ही ट्रीटेड वॉटर पिता आणि माझ्या कुठल्याही गावाला STP लावून पाणी टाकत नाही आणि ट्रीट करून पाणी लोकांना पाजत नाही. म्हणजे आम्ही तुमचं फक्त ते ब्लिचिंग टाकलेलं टाकीतलं पाणी प्यायचं, हे शुद्धीकरण. जाहीर निषेध आहे या प्रकल्पाचा, जाहीर निषेध करतो आणि विरोधही करतो. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. म्हणजे बुलंद आवाजानंतर मी काय बोलू हा प्रश्न आहे. पण जे त्यांनी सांगितलं ते खूपशं खरं आहे. पण सगळ्यात आधी सुपर क्रिटिकल, आत्ताही सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट आहेच, येणाराही सुपर क्रिटिकल पॉवर प्लांट आहे. हे नाव जे दिलं आहे ना, हे खूप चांगलं आहे. कारण जे आपण बघतोय तिकडे ते खरंच क्रिटिकल आहे. जितके गावातले लोक आले होते तिथे सुनावणी करता, त्यांना खरंच काही माहिती नव्हतं, त्यांना सांगितलं नव्हतं. EIA एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट जो होता तो अंग्रेजीमध्ये होता. जसं त्यांना अंग्रेजी तेवढी जमत नाही, समजतही नाही. 15 गावांना बोलवलं होतं. 46 मधून 15 गावांना बोलवलं होतं ज्यांचा होकार होता या प्रकल्पाकरता. बरोबर ते पोचले. ठरवून ठेवलं होतं की तिथे जेव्हा बायका येतील, महिला येतील तर शिव्यागाळ्या करायचा. आम्ही जेव्हा बोलायला आलो तेव्हा खूप विरोध झाला की तुम्ही एन्व्हायरमेंटलिस्ट, आत्ता सरांनी पण म्हटलं की जे एन्व्हायरमेंटलिस्ट घरी बसतात किंवा पोटं भरले आहेत ज्यांचे, ते विरोध करतात. सर, जरी आमचे पोटं भरले असेल तरी आम्ही पण उन्हामध्ये फिरून दिवसभर डेटा कलेक्ट करतो आणि त्याच गावकऱ्यांकरता ही मेहनत घेतो आहे. ज्या गावकऱ्यांच्या रोजगारबद्दल तुम्ही बोलले आणि ज्या तुमच्या मुलाच्या रोजगारबद्दल तुम्ही बोलले, दुर्भाग्य आहे की खरंच इतके वर्ष जर झाले तर अजूनही रोजगार उपलब्ध नाही. तर काय करता ते आपले नेते? प्रोजेक्ट्स आणताय तुम्ही, पण मग रोजगार दिला का नाही? जेव्हापासून हे पॉवर प्लांट सुरू झाले तेव्हापासून आत्तापर्यंत रोजगार उपलब्ध झाला का नाही? जितके गावकरी तिथे होते, जे होकार देत होते, त्यांची सगळ्यांच्या तोंडातून एकच गोष्ट निघत होती, जर कंप्लायन्स केलं, या राखेचं काही केलं, आमच्या शेतीच्या जमिनीचं काही केलं, त्याला प्रदूषित नाही होऊ दिलं तर आमचा प्रकल्पाला होकार आहे. तुम्ही विचार करा किती मजबूर आहेत ते लोक, किती केविळवाणी परिस्थिती आहे त्यांची. हे कोणीच विचार नाही केला. ते तिथे स्थानिक लोक आहेत. एखाद्या मोठ्या नेत्याच्या विरुद्धात बोलू शकतील का? 8 वाजतापासून बसले होते, सकाळपासून. महिला होते, पुरुष होते, सगळे होते. मॅडम, हमको नाश्ता नहीं मिला, नाश्ता कबूल किया था. म्हटलं मला नाही माहिती, तुम्ही ज्यांनी बोलवलं त्यांना विचारा. मला वाटतं 11:15 का 12 वाजता जेव्हा नाश्ता मिळाला, 90% महिला गायब. कारण रोजगारी गेला होता ना त्या दिवशीचा. कोण देणार होता तो रोजगार त्या दिवशीचा? हे विचारलं तर उत्तर नव्हतं. सगळ्यांनी एवढंच म्हटलं की बावनकुळे साहेबांना समर्थन द्यायकरता आम्हाला बोलवलं आहे. बावनकुळे साहेबांचा प्रोजेक्ट आहे का? माहिती नाही. रोजगार कोण देणार आहे? माहिती नाही. किती महिना मिळणार आहे? माहिती नाही. EIA काय आहे? माहिती नाही. क्लायमेट चेंज काय आहे? हवामान बदल जे म्हणतो ते काय आहे? माहिती नाही. एअर पोल्युशन काय आहे? माहिती नाही. पाण्याचं पूर्ण प्रदूषण तिथे झालं आहे. शेतीमध्ये पीक नाही, त्यांची शेती प्रदूषित झाली आहे. एकदा तुम्ही पैसा देता, एकदा, त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांना विचारत सुद्धा नाही ते जिवंत आहेत का मेले आहेत. ही हालत आहे तिची. आत्ता ही लीनाने जे सांगितलं वॉटर ATMs, का दिले त्यांना तुम्ही वॉटर ATMs? त्यांचं तोंड बंद कराय करता. त्यांचे वॉटर ATMs जे आहेत
त्याच्या भरोश्यावरती तुम्ही त्यांना तिथे घेऊन आले की आम्ही बंद करून देऊ. हे आम्हाला सांगितलं आहे गावकऱ्यांनी, म्हणून मी बोलते आहे. आम्ही जेव्हा सगळे बोलायचा प्रयत्न करत होतो तर एन्व्हायरमेंटचं जे होतं त्याचा एकही प्रश्न घेतला नाही गेला. सगळं काय होतं तर ओरडाआरडी रोजगारची. पण खरंच रोजगारबद्दल जर विचार केला तर ह्यांना कोणालाही नागपूरमध्ये येता तुम्ही काम करायला, आम्ही कधीच नाही म्हटलं की कोराडीतून नागपूरमध्ये येत आहे. पण तिथे सारखं एकच स्थानिक लोक. स्थानिक म्हणजे काय? काय हवा स्थानिक आहे? पाणी स्थानिक आहे? हवा इथपर्यंत येऊन प्रदूषित करते आहे, पाणी इथपर्यंत येऊन प्रदूषित करत आहे. त्याच शेतीतली जी पिकं आहेत ते आपणही खातोय सगळे. काय देणार पुढच्या पिढीला आपण? काय सोडणार आहोत त्यांच्याकरता? याच्याबद्दल कोणी विचार करतोय का? नाही. कोळसा खायचा, कोळसा प्यायचा, कोळसा अलमारीत भरायचा, कोळसा आपल्या जेबात भरायचा आणि या नेत्यांचे वावाकार करायचे. याच्याच करता आपण आहोत का सगळे? नाही. तर 3-4 गोष्टी मी सांगेन शेवटच्या. एक तर सेंट्रल महाराष्ट्राचं सगळं प्रदूषण विदर्भात का? विदर्भाने ठेका घेतलाय का सगळं प्रदूषण इथेच सांभाळून घ्यायचा? नाही. दुसरं आहे, मी एका समाजाबरोबर काम करते, सांगायला हरकत नाही, ढिवर समाज. ढिवर समाजाचे जे पोरं आहेत आणि परिवार आहेत ते मच्छीमारीने आपलं रोजगार करतात. कोराडी तलाव जर खरंच सर महाजन को अगर सीरियस होती तो अभी तक के जितनी लेगेसी फ्लाई ऐश है उसमें बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके कम से कम वो मच्छी पकड़ने वालों को उनका तालाब वापस करती. आज अगर वो तालाब आप देखेंगे तो डायरेक्ट फ्लाई ऐश वहाँ पे डंप होती है. वो तालाब भी कुछ टाइम में नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और शायद वो भी किसी को बेचा जाएगा. ये हमारी परिस्थिति है ग्राउंड पे. और हम कौन से पावर स्टेशंस की और कौन से प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं? एक के बाद एक नागपुर पे प्रोजेक्ट लादे जा रहे हैं. अकाउंटेबिलिटी असेसमेंट कुछ नहीं है. कोई अकाउंटेबिलिटी देने को तैयार नहीं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं. मेरा एक सवाल आप सबसे है, यहाँ उपस्थित सभी जो मंच पे है, कौन सा नेता है हमारा? हमारे पास मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, किसने जाके उस फ्लाई ऐश का एक भी सॉल्यूशन अभी तक के दिया है? जब एशबर्न ब्रीच हुआ था उसके बाद आज मेरे ख्याल से 2 साल हो रहे हैं, 1 साल हो रहा है. 1 साल में कौन से दोनों में से एक भी मंत्री ने जाके उसका निवारण किया है या उसका कोई सॉल्यूशन दिया है? हम एक फ़ोन कॉल पे एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं लेकिन उस गरीब को जाके देखते नहीं है कि उसकी हालत क्या है, उस शेतकरी की हालत क्या है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कोराडी लेक, विदर्भ में आने वाले जितने प्रकल्प हैं, ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी. और हमारी सरकार बात करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. सस्टेनेबल ये केवल शब्द है. आप हम कोराडी के लोग, वहाँ के 46 विलेजेस के लोग सिर्फ राख खाएंगे, कोयला खाएंगे, जो पानी है वो भी प्रदूषित पिएंगे. कैंसर बढ़ते जाएगा, कैंसर हॉस्पिटल्स बढ़ते जाएंगे. यहाँ पे आज 15 हॉस्पिटल्स पिछले 2 साल में आए, आने वाले साल में शायद और आएंगे. और ये पोटेंशियल है बिजनेस का, कैंसर हॉस्पिटल. ये उद्योगपति बोलते हैं हमारे यहाँ के लिए. तो खाइए, कोयला खाइए, राख खाइए, प्रदूषित पानी पीजिए, लेकिन फिर भी उस शेतकरी को रोजगार करके आश्वासन देते रहिए और प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स लाते रहिए. लेकिन हम नागपुर को या कोराडी वासियों को इसमें कुछ भी नहीं मिला है. ये हमारे पैसे से प्रोजेक्ट सारे, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिला है. हमको सिर्फ मिला है प्रदूषण. कोरोना के बाद अगर कोई चीज़ संभलनी थी, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करने वाले थे, तो ये प्रोजेक्ट सुपर क्रिटिकल जो है ये आने की बजाय उस सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे जो अभी है उस पे पहले काम होना चाहिए था. उस पे जो लेगेसी ऐश है इतने टाइम की वो पहले निकालनी चाहिए थी. उसके बारे में कोई सोचता नहीं है, ना हमारे नेता ना हम. आज हम भी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमको चिंता ज़रूर है, लेकिन सबको ये लगता विरोध माने रास्ते पे आके बोलना माने एंटी गवर्नमेंट. ऐसा नहीं है. हम अपनी सरकार को उनकी दिशा दिखा रहे हैं जहाँ वो गलत हो रहे. तो ये जितने प्रदूषण मैंने आपको बताया, इसमें एक लास्ट में जोड़ूंगी सर आपके लिए, महाजनों के लिए. पिछले लास्ट डिकेड में कितने हेल्थ कैंप्स हुए आपके यहाँ पे, कितने हेल्थ चेकअप्स हुए और कितने, मैं जस्ट कंप्लीट कर लूँ,
कितने कैंसर पेशेंट्स, कितने रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स और कितनों को ट्रीटमेंट मिली। अगर इसका डेटा भी आप हमको दे दें तो जो हमारे पास डेटा है वो हम आपको दे देंगे। एक मिनट बस। और एक स्टडी और है नीरी की, नीरी नागपुर में ही है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है एनवायरनमेंट की वो हमारे नागपुर में है। उनके पास और VNIT जो दूसरा इंस्टीट्यूट है नागपुर में, उनके पास कोराडी के ऊपर रिपोर्ट्स है और कोई EIA में हर पैरामीटर सही आता है, ये बिल्कुल बराबर नहीं है। ये जितने AI में दिए हुए पैरामीटर्स है, जब नागपुर में इतना प्रदूषण है वो तो सही कैसे आ सकते हैं। एयर पोल्यूशन पे हम नंबर 2 है, उसके बावजूद सारे पैरामीटर्स सही है। ये रिपोर्ट ही गलत है। तो ये जो एक्सपर्ट्स है, सबसे पहले तो इनको कटघरे में खड़ा कीजिए और जो VNIT के और नीरी के रिपोर्ट्स है वो बाहर लाइए। उनके जो किए हुए रिपोर्ट्स है उस पर से हम पता करेंगे कि सही क्या और गलत क्या। और पिछला EIA जो हुआ था और अब का EIA जो अभी नए प्रोजेक्ट्स के लिए, ये दोनों EIS के साथ और आज की परिस्थिति और आज के क्लाइमेट चेंज के साथ ये कंपैरिजन होनी चाहिए। उसके बाद ही हम बात करेंगे वेदर ये प्रोजेक्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और लास्ट, ग्रीन एनर्जी जिसकी बात हमारी सरकार करती है, सॉल्यूशन ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर बात करें तो बिल्कुल बिजली सबको चाहिए, वेलकम है, लेकिन if they are serious about actually getting in green energy, only then and with the inclusion of all the citizen and stakeholders. Thank you. नमस्कार सभी को। देखिए, बोलने के लिए नया कुछ है नहीं, क्योंकि सबको सब पता है। सबको सब पता है क्या घट रहा है, क्या नहीं घटना चाहिए और क्या घट रहा है। इसके बावजूद भी अगर बोलना है तो एक सिंपल सी भाषा में ऐसा है कि बोला ये जा रहा है कि हम 6 थर्मल पावर प्लांट को बंद करके 2 नए ला रहे हैं। अच्छी बात है। वो पुराने हैं, वो ज़्यादा पोल्यूशन करने वाले थे। हम नए ला रहे हैं, ये कम पोल्यूशन करने वाले हैं। अच्छी बात है। पर हम जो बंद कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? वो भुसवाल में कर रहे हैं, पार्ली में कर रहे हैं, चंद्रपुर में कर रहे हैं। हम ला कहाँ रहे हैं? हम नागपुर में ला रहे हैं। नागपुर वैसे ही स्ट्रगल कर रहा है। हर शहर की, हर जगह की इकोसिस्टम की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है, सहने की क्षमता होती है। नागपुर उस क्षमता से बाहर है। उसके बाद भी हम 2 प्लांट नागपुर में ही ला रहे हैं। चलो हम ये भी मान लेते, चल भैया नागपुर में ही ला दिया, ठीक है, पर ये जो बिजली है वो किसके लिए है? वो हमारे लिए नहीं है। वो बिजली यहां बनेगी, कहीं और जाएगी। तो यार यहां क्यों बना रहा है भाई? अब ये जो ट्रांसमिशन लॉस है, ले जाने का जो लॉस है, कम से कम उसका ख्याल कर ले। मतलब नागपुर वैसे ही हालत खराब है, यहां पे हम 2 प्लांट और ला रहे हैं। हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हम एमिशन न्यूट्रलिटी पे होंगे, क्योंकि हम 6 प्लांट बंद करेंगे। इतना 210 की इतने बंद कर दिए। नागपुर का शायद एक ही प्लांट बंद हो रहा है 200 का, उसके जगह पे 660 के 2 आ रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो मामला समझ में आता है कि इतना बंद कर दिया, इतना चालू किए। पर अगर नागपुर की बात करें तो मामला बिल्कुल समझ में नहीं आता है। बोलने के लिए है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम FGD लगा देंगे। पर सर बुरा मत मानिए सर, मैं किसी पक्ष विपक्ष का नहीं हूं, पर जो एग्जिस्टिंग प्लांट है FGD तो आपने अभी तक नहीं लगाया सर। आप कब से वादा कर रहे हैं लगाएंगे लगाएंगे लगाएंगे, आपने अभी तक नहीं लगाया सर। तो अब हम कैसे ये मान ले सर कि आप जो नया ला रहे हैं उसमें आप लगाएंगे? हम तो भुक्तभोगी हैं, हम तो देख रहे हैं, नहीं लगाए भाई। उसी तरह से सर के एक सेंटेंस था कि थर्मल पावर प्लांट अकेले पोल्यूशन नहीं करता है। सर जी वो तो सब जगह लिखा हुआ है सर कि थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता है। तो थर्मल पावर प्लांट सबसे ज्यादा करता है, बच्चा बच्चा जानता है सर, मैं क्या बोलूंगा। नहीं, ग्लोबल टेम्परेचर में भी सर प्लीज। नहीं सर, सर मेरे 5 मिनट में क्यों बीच में अड़ंगा डाल रहे हो सर? 5 ही मिनट है सर, 5 मिनट, 15 सेकंड एक्स्ट्रा सर के लिए। तो अब देखिए जो ग्लोबल टेम्परेचर, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पेरिस एग्रीमेंट पे 193 देशों ने हस्ताक्षर किया है। क्यों किया है? क्योंकि पिछले 100 साल में विश्व का एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री बढ़ गया है। सबका कहना है कि भाई इसको 105 1.5 डिग्री पे रोक।
नहीं तो कम से कम 2 डिग्री बढ़ने तक रोक, उसमें भारत ने भी हस्ताक्षर किया है। भारत ने पहले बोला था कि कार्बन न्यूट्रलिटी हम 2050 में अचीव कर लेंगे, बोलने की बात है सर। अब हमको भी समझ में आया कि मुश्किल है, तो हम 2050 को 2070 कर दिए। देखिए, ऐसे फोरम में यहां बैठ के माइक हाथ में लेके कैमरे के सामने बोलना बहुत आसान है कि हम सोलार पे कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, पर प्रैक्टिकलिटी में नहीं होगा सर। थर्मल पावर प्लांट ही लगेगा, क्योंकि आज हम उतने इक्विप्ड नहीं हुए हैं कि हम टोटली सोलार पावर पे चले जाए। हालांकि मैं बता देता हूं कि पूरे विश्व में भारत आज के डेट में सोलार और विंड में चौथे और 5वें पादान पे खड़ा है, अच्छा परफॉर्मेंस है। मगर आज हम उतने इक्विप्ड नहीं हुए हैं। सो यहां जितने भी लोग बैठे हैं या जो सुन रहे हैं या जो नागपुर की जनता है, कोई भी थर्मल पावर प्लांट का विरोध नहीं कर रहा है। सिर्फ हम विरोध ये कर रहे हैं कि मरे को और क्यों मार रहे हो। हम वैसे ही घुटने पे हैं भाई, और जो पावर हमारे लिए नहीं है वो हमारे आंगन में क्यों यार, दूसरी जगह बना ले, जिसको जरूरत है वहां बना लो भाई, प्लीज। ये बस हमारा कहना है। और इसके सिवा जहां तक रोजगार की बात है, वो ऑलवेज सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है हमारे देश में। हम आज एक डेवलपिंग कंट्री है, या रोजगार का मुद्दा तो रहेगा ही, वो उनका पक्ष भी सही है, रोजगार उनको चाहिए। मगर लोग शायद एक बेसिक बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका जो पर्यावरण का जो मार पड़ेगी, और जहां तक 1 साल पहले ही जो अपना ऐश बंड जब टूटा था जिसके बारे में चर्चा है, और मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं सर, नेट पे गूगल करो सब मिल जाएगा सर। यहाँ बहुत ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं हिंदी में शुद्ध भाषा में वही बोल रहा हूं जो मैंने नेट पे पढ़ा है। और एक आम नागरिक होने के नाते मैं ये बोल के कंक्लूड करना चाहता हूं, मैं समाप्त करना चाहता हूं कि थर्मल पावर प्लांट का विरोध कोई नहीं कर रहा है, पर कोराडी एक ऐसा जगह नहीं है जो और 2 नए थर्मल पावर प्लांट के पोल्यूशन का मार झेल सके। तो कृपया दूसरा जगह ढूंढे, जहां इसकी जरूरत है वहां ले जाए। मैं कोई नहीं होता हूं बोलने वाला कि अब यहां ले जाओ वहां ले जाओ, इसके लिए बहुत ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए हैं। निर्णय लीजिए, चर्चा करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए, और कोराडी को और नागपुर को और पोल्यूशन की मार से मुक्त करिए। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, सभी को धन्यवाद। जो लोग यहाँ पर आज आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चर्चा है अगर हम आज नहीं करेंगे तो भविष्य की जो पीढ़ी है वो हमें ज़रूर याद करके बोलेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत सारी चीज़ें आज यहाँ पर आप सबने सुनी, मैंने भी सुनी, सीखने को भी मिला। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा है जो अभी कौस्तुभ भाई ने भी यहाँ पर रखा, और मैं इससे सहमत हूँ। क्या है कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, और हमें अगर हमारा ग्रोथ रेट मेंटेन करना है तो उसके लिए पावर की रिक्वायरमेंट है, ये सैक्रोसैंक्ट है, इसको अपन नकार नहीं सकते। पावर की ज़रूरत हमारे देश को है और बढ़ती रहेगी। हर साल अपने को पावर जो है कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इसको कोई डिनाई नहीं करता। पर जब हमारी पावर पॉलिसी डिज़ाइन हुई थी और हमारे यहाँ पे ये था कि भाई कोयला उपलब्ध है, कि थर्मल पावर प्लांट है, ये एक सस्ता तरीका है बिजली बनाने का, तो जब पावर पॉलिसी बनी थी उसमें यह था कि पावर प्लांट्स एट वेरियस लोकेशंस एंड पावर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस स्टेट। तो ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। तो इसको हम वहां से हटकर अब हमने पावर पॉलिसी बना दी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर प्लांट्स ओनली इन विदर्भ एंड पावर टू बी ट्रांसमिटेड टू वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है उससे हम हट चुके हैं। क्या विदर्भ में पावर प्लांट होने चाहिए? होने चाहिए, पर कितने होने चाहिए? उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एक ही जगह पे अगर अपन पावर प्लांट कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो उसके जो नुकसान है वो अभी सबने अपने को गिना दिए। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तर्क ये दिया जाता है कि विदर्भ में पावर प्लांट इसलिए हो क्योंकि यहां पर कोयला है। ये हमेशा तर्क दिया जाता है कि पिटहेड पे पावर प्लांट लगा देते हैं। हमारे यहाँ पर पूरे देश में ऐसे अनेक पावर प्लांट है जो पिटहेड पे नहीं है, जहां पर कोयला ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये अपनी स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरा ऐसा,
हमारे विदर्भ का कोयला, अभी गोयनका साहब ने बहुत अच्छी बात बोली अबाउट द कैलोरीफिक वैल्यू। जो कैलोरीफिक वैल्यू है अपने यहाँ की ऐश कंटेंट हाई होने की वजह से अब ये हो रहा है कि हम उसमें फॉरेन से कोल लाकर अब उसमें हम लोग ब्लेंडिंग कर रहे हैं। तो हम लोग अगर ब्लेंडिंग ही करने वाले हैं और कोयला यहाँ का कुछ और वहाँ का करने वाले, तो फिर हमारे विदर्भ में क्यों करते? आप अपने मुंबई की जो नीचे तक कोस्ट लाइन है, कहीं पे भी आप पावर प्लांट लगाओ। गुजरात में कितनी कैपेसिटी है पावर प्लांट्स की? जो कोयला ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं मलेशिया, इंडोनेशिया से कोयला आ रहा है, और गुजरात में तो मैक्सिमम जो पावर प्लांट्स लगे हैं वो कोस्ट पे लगे हुए हैं। तो आप बाहर से मंगाइए या यहाँ से ट्रांसपोर्ट करिए और वहां पर आप करिए प्रोड्यूस। वाई कॉन्सेंट्रेट ऑल द पावर प्लांट्स इन विदर्भ? ये बहुत मुद्दे की बात है। दूसरा, इसके ऊपर एक काउंटर ये लोगों ने दिया है कि अमित शाह बेचारे अकेले ही है तो सब लोग उन्हीं पे कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं क्योंकि मैं एक एनजीओ चलाता हूं और अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। अपने नागपुर और विदर्भ के बच्चों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एज पॉलिटिकल लीडर्स जो अपने आज साथ में हैं, कल थे, आज है, उन लोगों को इस विषय के बारे में बड़े प्रामाणिक होना पड़ेगा। आज क्या हो गया कि पावर प्लांट लगाने से कोई अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का इशू सॉल्व करना है तो आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अभी राजनांदगांव में डिक्लेयर किया, वो हमारे नागपुर या MIDC बुट्टीपुरी में क्यों नहीं किया? क्या हमारे लोग कैपेबल नहीं है? हमारे यहाँ के इंजीनियर्स नहीं है? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? तो अगर आपने ये अगर किया रहता तो इसके रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज आती थी और बड़े पैमाने पे रोजगार यहाँ पे पैदा होता था। तो अगर आप इस बात से प्रामाणिक हो कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो जो मिहान की अवस्था है, आज आप क्यों नहीं, कितने साल हो गए, आज 5-7 साल हो गए, एक भी रोड शो हुआ है क्या टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज? आप गए हो क्या? आप कोई इंडस्ट्रीज को आपने नागपुर में बुलाया क्या कि भाई आप हमारे मिहान में ये करिए? जो लोग हैं वो भी नहीं कर रहे, जिन्होंने जमीन ली है आप बोल रहे हैं आप उनसे वापस लेंगे करके। तो वेयर इज दैट ऑनेस्ट एफर्ट? अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही करनी है तो उसके अनेक तरीके, IT, BT, MROs के लिए अपन ने जो है कि SEZ अपना एक ही है, अपना ऐसा एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और SEZ लग के है। MROs करके आप उसको डेवलप करिए, एक अपना लगा हुआ है, 3-4 और आ सकते हैं MROs, उसमें बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये सारी चीजें, और सबसे मेन है लॉजिस्टिक्स हब। अभी तक हमने पॉलिसी नहीं बनाई है, इंदौर अपने से आगे निकल रहा है। लॉजिस्टिक्स में इतना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, और वो भी लो रंग जॉब्स। अपने यहाँ पे हर कोई इंजीनियर नहीं बनता, ग्रेजुएट किए हुए बच्चे वो सारे वहां पर लॉजिस्टिक्स हब में लग सकते हैं बड़े पैमाने पर। तो उसकी कोई तुमने पॉलिसी नहीं बनाई है। और आखिरी मुद्दा जो मैं यहाँ पर रखूंगा वो पोल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर जो तीसरा मुद्दा है, जो मुझे लगता है भविष्य की जो एक चिंता है, वो है आने वाला वाटर क्राइसिस। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भी समय को ये रखना है, लेकिन टोटलाडो, नवेगांव, खेरी और खिंडसी अपने को पेन से पानी आ रहा है और कनान नदी से पानी आ रहा है। और अपनी जो रिक्वायरमेंट है नागपुर शहर की, मैं स्पेसिफिकली जाधव साहब ने उनके यहाँ की बात की, लेकिन मैं नागपुर की बात करूंगा कि आने वाले दिनों में अपनी जो पानी की रिक्वायरमेंट जो आज है वो आज भी हम पूरी नहीं कर पा रहे। टैंकर से कई एरियाज में हम सप्लाई कर रहे हैं। और एक बात ये भी है जो डेंजर है कि आज अपने यहाँ पे मध्य प्रदेश से पेंच का जो अपना एक समझौता था, आज वहाँ पर उन्होंने एक और डैम जो है वहाँ पर बांध दिया है। अपना जो वाटर अवेलेबल है, जो 1200 TMC था, उसमें से अपने को जो शेयर आने वाला है वो आने वाले दिनों में और कम होने वाला है। और ये अपने लिए घातक क्यों है? क्योंकि नागपुर इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा माइग्रेशन, वन ऑफ द टॉप 3 सिटीज है। आज अपन 35-40 लाख पे ऑलरेडी पहुंच गए। पेरिफेरल एरियाज मिला के अपनी जो रिक्वायरमेंट है और जो NMC जो कैलकुलेट कर रही है उसके हिसाब से अपने पास आने वाले 10 साल में पानी का क्राइसिस आने वाला है। कितने? 10 साल में। और अगर अपन पानी का शेयर, अब ये बोलते हैं ट्रीटेड वाटर कोराडी में जाता है, लेकिन कितना वहां यूज होता है और फ्रेश वाटर कितना यूज होता है, इसके ऊपर वो उन्होंने
प्रामाणिकता से, ईमानदारी से लोगों को बताना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। तो मैं इन्हीं मुद्दों के वजह से मेरा स्पष्ट मत है कि पावर प्लांट के विरोध में नहीं, लेकिन पावर प्लांट कुराडी में मत लगाइए, कहीं और लगाइए। धन्यवाद। धन्यवाद दृष्टि जी। सबसे पहले तो मैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और नागपुर टुडे को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज बहुत ही कम समय में एक इतना अच्छा एक कार्यक्रम रखा है और ये पहली शुरुआत है। ज़्यादातर जो मुद्दे हैं सब कवर हो चुके हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा इससे हट के बात करना चाहता हूँ। हमारा इशू था एक्सपांशन जो था, वेदर ये सस्टेनेबल, जो अभी बोर्ड पे नहीं है, लेकिन जो मुझे बोला गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी कोशिश की कि वाकई में क्या ये पावर प्लांट सस्टेनेबल हैं, और एक डिटेल एनालिसिस करने के बाद में आपको समझ में आएगा कि ये जो भी सेंट्रल इंडिया में आ रहा है या जो कोराडी में आ रहा है, इसको कभी भी किसी भी रूप में हम सस्टेनेबल तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम सस्टेनेबल पावर प्लांट के लिए जो हमको चाहिए वो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यदि आप देखेंगे तो सारे पावर प्लांट, कोल बेस्ड पावर प्लांट आते हैं वहाँ जहाँ पानी होता है, जहाँ कोयला होता है या जहाँ बिजली कंज्यूम होती है, वहाँ नहीं आ रहे। पूरी दुनिया में सारा झगड़ा पानी का है, और ये बात हमारे विदर्भ के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। थोड़ी सी इतिहास में आपको ले जाना चाहता हूँ कि 2005 में भारत में एक पॉलिसी आई। उन्होंने बोला कि भारत को 2030 तक 6 लाख मेगावाट की ज़रूरत है। 6 लाख मेगावाट पावर चाहिए, और उसके लिए पानी चाहिए। ये ओपन हो गई इंडस्ट्री, और उस समय विदर्भ पर्यावरण कृति समिति, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आज से नहीं, गोयनका जी हमारे चेयरमैन बैठे हैं यहाँ पर, हम पिछले 20-25 सालों से विरोध कर रहे हैं। एक दिन हमने देखा कि रातों रात जो पानी का अलॉटमेंट था, प्रायोरिटी थी, मैं किसी पार्टियों को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि दो ही पार्टियां रही हैं सत्ता में और दोनों उतनी ही जिम्मेदार हैं। रातों रात पॉलिसी जो थी पावर की, वाटर की, पावर प्लांट के लिए या इंडस्ट्री के लिए, वो रातों रात बदल गई। हमारी प्रायोरिटी क्या होना चाहिए पानी के लिए? पहला ड्रिंकिंग होना चाहिए, दूसरा इरिगेशन होना चाहिए, और तीसरा इंडस्ट्री होना चाहिए। लेकिन रातों रात जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी अनाउंस की कि 6 लाख मेगावाट बिजली हमको चाहिए, तो ये रातों रात पॉलिसी बदल गई। और हमने क्या किया? हमने फर्स्ट नंबर पे, इस पे बड़ा कन्फ्यूजन है, ज़्यादा जानकार लोग बता सकते, लेकिन पहले नंबर पे हम चले गए इंडस्ट्री को, और रातों रात हमने विदर्भ में 132 पावर प्लांट को परमिशन दे दी। 132 पावर प्लांट का अलॉटमेंट हो गया पानी का। ये अभी चूंकि नई जनरेशन को ये सब जानकारी नहीं है। जब 132 पावर प्लांट को अलॉट हो गया, उसमें एक एग्जांपल हम बता सकते हैं कि अमरावती का था, जहां पर वर्धा, अपर वर्धा डैम, जिसके लिए बहुत ज़रूरी था, उस क्षेत्र में इरिगेशन नहीं था और वो एक अकेला डैम बनाया गया था। रातों रात उसका पानी जो है एक पावर प्लांट को अलॉट हो गया। बहुत विरोध हुआ, फिर उसका एक्सपेंशन भी रुका, लेकिन वो पावर प्लांट आया। लेकिन बाकी बहुत सारे पावर प्लांट हैं जहाँ जाके हमने विरोध किया, और 86,000 मेगावाट के पावर प्लांट आ रहे थे विदर्भ में। इस विरोध का असर ये हुआ कि सरकार को पॉलिसी बदलनी पड़ी, वापस रिस्टोर की गई जो पॉलिसी थी, और बहुत सारे पावर प्लांट नहीं आए। नहीं तो आज शायद हम यहाँ पे नहीं होते, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया रहता। तो ये शुरुआत जब से है, तो लोगों का कहना है कि बिजली पावर प्लांट विदर्भ में होना, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको बिजली से इतराज़ नहीं, बस सवाल ये कि सब सस्टेनिंग काम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इस हॉल में जब मैं आया तो मैंने यहाँ देखा, एक फोटोग्राफ है, आप ज़रा ध्यान से देखिए। इसके बैकग्राउंड में यहाँ का बैकग्राउंड दिया है, ब्लू बैकग्राउंड दिया हुआ है। आप ज़रा उधर देखिए, रेलवे स्टेशन के पास में वाइट बैकग्राउंड है। वो ये डिपिक्ट करता है कि ये जो वाइट बैकग्राउंड नागपुर में हो गया है। मैंने तो बहुत दिनों से नागपुर में नीला आकाश देखा ही नहीं, और ये जो आप देख रहे हैं ये सब पावर प्लांट का असर है। जैसा अभी कौस्तुभ जी ने बोला कि सस्टेनिंग कैपेसिटी नहीं है,
2010 में जब कोराडी का पावर प्लांट आया, इसका विरोध किया। गोयनका जी पहले व्यक्ति थे विदर्भ इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से, जिन्होंने काफ़ी उसमें प्रयास किया, बहुत विरोध किया, इसकी जन सुनवाई में भी विरोध किया। और उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने बोला कि कम से कम जो सल्फर डाइऑक्साइड जा रही है उसके ऊपर एक FGD लगाना है। 2010 की बात है। आज 2023 में भी FGD लगा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल काम था, सिर्फ 300-400 करोड़ का खर्चा है। आपकी जानकारी के लिए, जहाँ जो कोयला इस्तेमाल होने वाला है उसकी वॉशिंग की कॉस्ट 42,000 करोड़ रुपया है। उसके सामने एक FGD लगाने की कॉस्ट थी सिर्फ 300 करोड़ रुपया उस जमाने में, लेकिन नहीं लगाया गया। कहने का मतलब यह है कि सिस्टमेटिकली हमने विदर्भ को और नागपुर को किस तरह से ख़त्म किया जाए, इसकी शुरुआत है। नागपुर के लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। जाधव जी ने एक प्रयास किया। आज पूरा जो पब्लिक हियरिंग हमने अटेंड किया, जो उसके डॉक्यूमेंट हमको दिए गए, उसमें बोला गया कि पूरा पावर प्लांट जो है वो नागपुर के सीवेज ट्रीटमेंट पानी से चलेगा। ये टोटल गलत है। नागपुर में सीवेज ट्रीटमेंट कलेक्शन का सिस्टम ही नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं। हमारे सामने तो बड़े लीडिंग आर्किटेक्ट बैठे हैं, वो भी कंफर्म करेंगे कि हम सारा सीवर जो है वो नदी में डालते हैं, लेकिन नदी का अपना एक अस्तित्व होता है, उसका एक अपना पानी होता है। उसको से हम डाइल्यूट कर रहे हैं या उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं सीवेज से। उस सीवेज को एक बंधारा बना के हम लोग कलेक्ट करते हैं और उस सीवेज को सरसिटी ट्रीटमेंट बोल के पावर प्लांट चलाते हैं। ये टोटल गलत है। सीवेज नाम की चीज़ नागपुर में नहीं है। सीवेज कलेक्शन सिस्टम शायद और अगले 10 साल में बनेगा। तो ये कहना कि ये जो पावर प्लांट है ये बिना पानी के आने वाला है, ये टोटल सरासर गलत है। कंक्लूसिवली हमने प्रूव किया है और आगे भी प्रूव करेंगे। दूसरा पहलू देखिए, टर्शरी ट्रीटेड, जब हम आजकल बहुत सारी वर्ल्ड सिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारी कॉलोनीज़ बन रही हैं, उनको भी एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है। और उस एनवायरमेंट क्लियरेंस में एक कंडीशन होती है कि आप यहाँ का जो भी सीवेज है उसको आप रिसाइकिल करेंगे और लोगों के घरों में देंगे ग्रे वाटर करके। तो वहाँ 2 वाटर आपको यूज़ करना है। एक वाटर है जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए ड्रिंकिंग, और दूसरा जो है वहीं का सीवेज आपको ट्रीट करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नागपुर में ऐसा क्यों नहीं है? क्या नागपुर कॉरपोरेशन ये जो सीवेज ट्रीट भी कर रही है वो वापस ग्रे वाटर करके क्यों नहीं दे रही हमको, और ये क्यों बेचा जा रहा है? उसका भी कारण बता दूं कि जिस दिन ये सीवेज के रूप में ट्रीट किया जाएगा ये प्लांट बंद हो जाएंगे, क्योंकि सीवेज ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आज की तारीख में तो ये नाग नदी का पानी है जिसको हम सीवेज के नाम से बेच रहे हैं। यदि आप कैलकुलेशन देखें, एक चूंकि समय कम है मैं 2-3 चीज़ें ही बताना चाहता हूँ। इन्होंने ये बोला है कि हमको कितना पानी लगने वाला है। अमीन जी हैं, पूरी ज़िंदगी इन्होंने पावर सेक्टर में गाई है। यदि आप देखें कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दुनिया में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है या तो बंद हो रहे हैं या सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में जा रहे हैं। पावर प्लांट को जो सबसे ज़्यादा, जैसा मैंने बोला कि ज़रूरत होती पानी की, नागपुर में जो पानी लग रहा है, जो रिक्वायरमेंट है नागपुर के पावर प्लांट के लिए, कोराडी के पावर प्लांट के लिए, वो है 4,600 टर्शरी ट्रीटेड वाटर मीटर क्यूब पर आवर। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझेंगे कि ये पानी लाखों लोगों का शहर के ड्रिंकिंग वाटर सोर्स हो सकता है, जो हम सीवेज ट्रीटेड काम कर रहे हैं। अब ये पानी कहाँ जा रहा है ये भी हम समझ लें। ये जो पानी है इसमें बहुत सारा पानी जो है वो आसमान में उड़ जा रहा है कूलिंग वाटर के नाम पे। वो नागपुर में रहता ही नहीं है। तो जो नागपुर का पानी हमने पावर प्लांट को दिया, आप यदि देंगे, इसमें यहाँ नहीं दिख रहा है, यदि देखेंगे तो कूलिंग टावर होता है, उसमें से ये पानी आसमान में उड़ जाता है। जबकि दुनिया में सस्टेनेबल पावर प्लांट की बात करें हम, तो वहाँ पर एक हीट एक्सचेंजर लगा दें, जैसे हमारी गाड़ी में होता है। गाड़ी का रेडिएटर जो होता है वो हवा से ठंडा किया जाता है, उसी तरह से हवा से पावर प्लांट की जो स्टीम कंडेंस होना है वो की जाती है। उतना सारा पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और ये पूरा जो डॉक्यूमेंट दिया है उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें ऐश में कितना पानी जाने वाला है। वो इसलिए नहीं बताया कि कानून के हिसाब से 100% ऐश इस्तेमाल करना है।
पूरी दुनिया में जो विकसित देश हैं, चाइना जाइए, बाकी जगह जाइए, वहाँ जो राखड़ जनरेट होती है उसका 100% इस्तेमाल करते हैं, और जब पॉन्ड में डालते हैं तो उसको एक तरह से पेस्ट बना के डालते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसको 70% पानी और 30% राखड़ डाली जाती है। और ये जो अभी बुलाया गया कि ये वेस्ट होता है, ऐश पॉन्ड फट जाते हैं, इसका कारण ही वो 70% पानी है, क्योंकि पानी की कोई वैल्यू नहीं है, वो नागपुर वाले फ्री में दे रहे हैं। जब तक सस्टेनेबिलिटी के लिए हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो पावर प्लांट की वायबिलिटी कुछ रहती नहीं है। जहाँ तक हम भारत की बात करें तो किसी ने बोला कि पोल्यूशन पावर प्लांट ज़्यादा नहीं करते हैं। फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया में जो कार्बन एमिशन हो रहा है कोल बेस्ड पावर प्लांट द्वारा, भारत उसमें सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद। और जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का सवाल है, हमारा जो फिगर है वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब 1 यूनिट बिजली बनाने के लिए हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजीज हैं। सुपर क्रिटिकल की बात की अभी, लेकिन सुपर क्रिटिकल को यूज़ नहीं करते, जैसा था आपने। हाँ, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो प्रश्न होंगे तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगा कि सारा झगड़ा पानी का है। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी हम 29 तारीख को एक पब्लिक हियरिंग अटेंड करके आए, और पूरा चूंकि नागपुर रीजन को हब बना दिया गया है पावर सेक्टर का, तो यहाँ कोल माइन भी खोलना है, जो नागपुर के लोगों को मालूम नहीं है। नागपुर के आसपास 5 कोल माइन खोली जा रही हैं प्राइवेट सेक्टर द्वारा, उसमें से एक की पब्लिक हियरिंग 13 तारीख को है, 13 जुलाई को। और उसका लोकेशन जब मैंने देखी तो एक लेक के किनारे पे है, गोंडखेरी, बहुत दूर नहीं है यहाँ से। पूरा क्षेत्र खत्म कर देंगे, वहाँ पहली माइन खुल जाएगी, किसकी है सबको मालूम है, और 4-5 माइन्स आ रही हैं, तो नागपुर में कुछ बचना नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि पिछले कई सालों से एक प्रयास चालू है नागपुर को हब बनाने का। हमको तो सिर्फ एक कोराडी दिखता है, आप वर्धा के पास देवरी में जाएंगे तो वहाँ पूरा जंगल बन गया है ट्रांसमिशन लाइंस का। पूरे देश की बिजली यहाँ लाके या नागपुर के विदर्भ की बिजली जनरेट करके पूरे देश में फैलाने के लिए जो नेटवर्क लगता है वो ऑलरेडी बन गया है। आप सावनेर में जाएंगे, प्राइवेट पार्टी ने नागपुर से मुंबई तक ट्रांसमिशन लाइन डाल दी है जो बिजली ले जाने के लिए, तो सारा नेटवर्क यहाँ रेडी कर दिया गया है। अब सिर्फ यही है कि आपका विरोध बंद करना है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पावर सेक्टर को मौका देना है। एक चीज़ मैं जाते जाते जरूर बोलना चाहूँगा कि 2030 तक भारत सरकार चाहती है कि सारी ऑटोमोबाइल्स जो हैं वो ईवी पे कन्वर्ट हो जाएं। और ईवी पे कन्वर्ट होना है तो ज़्यादातर गाड़ियाँ कहाँ हैं? मुंबई पुणे रीजन में है। उनको चार्जिंग कौन करेगा? वो हमारा पावर चार्ज करेगा, बिजली यहाँ से जाएगी। और उससे भी बड़ी बात 4 दिन पहले की, हमने 13,000 मेगावाट पंप स्टोरेज के MOU साइन किए। पंप स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जो हमारा पानी है किसी तालाब में, किसी लेक में, डैम में, उसको हम पंप करके एक हायर लेवल पे ले जाते हैं, वहाँ स्टोर करते हैं और रात के टाइम उससे बिजली पैदा करते हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि सारे प्रोजेक्ट, विदर्भ में एक भी प्रोजेक्ट नहीं है पंप स्टोरेज का। बड़े शर्म की बात है। अभी अनाउंस हुई 4 दिन पहले 13,000 मेगावाट, नो प्रोजेक्ट इन विदर्भ। और इन पंप स्टोरेज को जो बिजली लगेगी वो विदर्भ से जाएगी। और रात को जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनाएंगे तो हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से बिजली बनाई। तो आप समझ लीजिए कि विदर्भ का और नागपुर रीजन का क्या होने वाला है। धन्यवाद।